बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है उसको स्टडी करेंगे। दीज आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंपाइलर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हम लिखेंगे। आल्सो नाउन एज कंपाइलर डायरेक्टिव भी इसको बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सी कंपाइलर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है उसका एक हिस्सा है ये। सेमीकोलन इज़ नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम यूज़ करते हैं उसके एंड पे सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे। प्री प्रोसेसर स्टार्ट्स विद हैश सिंबल से ये स्टार्ट होगा। इंक्लूड एंड डिफाइन आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर इज़ यूज्ड इन सी टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। इंक्लूड प्री प्रोसेसर इट एनेबल्स अ प्रोग्राम टू असेस लाइब्रेरी को असेस करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। ईच लाइब्रेरी कंटेन्स डिफरेंट हेडर फाइल्स इसमें इंक्लूड होंगी। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन प्रोग्राम। सिंटेक्स क्या होगा? हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल। एग्जाम्पल क्या होगी? हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड math.h। description क्या है इसकी? The include directive tells the computer where to find the meaning of standard identifiers such as printf. The meanings are described in standard header files. Header files stdio.h contains information about standard input and output functions such as scanf and printf. The math.h contains information about common mathematical functions. Define preprocessor. It is used to define a constant. It starts with hash symbol. It is not terminated with semicolon. Semicolon जो है वो इसके एंड पे नहीं आएगा. It can be written anywhere in the program. प्रोग्राम में आप कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं. Syntax के hash define identifier value. Hash it indicate the starts a preprocessor directive. Define it is used to define a constant. Identifier it is the name of the constants. Value it represents the value associated with the identifier. For example, hash define pi 3.141593. Header files. It is a collection of standard library functions to perform different tasks. Standard library functions are simply C library functions are built-in functions in C programming. Each header file contains different types of predefined functions. Many header files can be included in one program. Header file must be included before calling of its function in the program. Extension of header file क्या होगी? .h होगी. The include preprocessor directive is used to include header files in programs. These files are provided by C compiler systems. Header files are normally stored in include subdirectory. Syntax के hash include header file name और hash include header file name. ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड math.h, हैश इंक्लूड conny.h. मेन फंक्शन पीछे भी हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा था, तो उसमें था मेन फंक्शन जो है एक्चुअल में आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है. मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स. व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल एंटर्स मेन फंक्शन एंड स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन. ईच प्रोग्राम कंटेन्स मेन फंक्शंस. If a program does not contain main functions, it can be compiled but not executed. Statements are written in the body of the main functions. Body is enclosed in curly braces के अंदर आपकी body बंद होती है. Syntax void main, body of main function. Explanation क्या? The definition of main function starts with keyword void. Void से start होगी. Void means that the function will return no value. कोई भी value return नहीं करेगा. Keyword void in parentheses indicate that function does not accept any arguments. Body of main function is enclosed in braces. Braces के अंदर आपकी main body जो है वो बंद होगी. C statement. It is an instruction for the computer to perform a task. Statements are written in curly brackets. Computer performs these instructions one by one in the same sequence in which these instructions are written. Each statement in C is terminated with semicolon. ठीक है, इसमें हर स्टेटमेंट जो है उसके एंड पे सेमीकोलन लगाया जाएगा. एग्जाम्पल के हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हम मेन का फंक्शन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी, करली ब्रेस से ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट होगी,
फिर उसके दरमियान हम स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर इसको लिखा जाएगा और एंड पे सेमी कॉलन लगाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम जितनी मर्जी स्टेटमेंट चाहे इसके अंदर लिख सकते हैं। डिफाइन बग एंड डीबगिंग। बग क्या है? एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के अंदर कोई भी एरर आ जाता है, ठीक है, उसे हम बग बोलते हैं। प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। अगर प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर आ जाता है तो आपका जो है वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। द कंपाइलर डिटेक्ट्स एंड डिस्प्लेज एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। डिबगिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग। आप एरर को फाइंड करते हो और उसको रिमूव करते हो, डिबगिंग कहलाएगा। द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एरर जो है मस्ट बी रिमूव होगा फ्रॉम द प्रोग्राम से बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होने से, कंपाइल करने से पहले एरर को जो प्रोग्राम से रिमूव होना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ एरर्स, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? A type of error that occurs when an invalid statement is written in the program. Compiler detects syntax error को डिटेक्ट करता है। A program containing syntax error cannot be compiled successfully. अगर आपके उसमें कोई एरर आ जाता है तो वो सक्सेसफुली जो कंपाइल नहीं होगा। The statement terminator is missing at the end of statements. A misspelled keyword is used in the programs. ठीक है, कोई आप जो है वो स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। एनी ऑफ द डेलीमाइट्रीज इज मिसिंग, कोई भी आपकी कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो मिसिंग होती हैं, ठीक है, तो उससे भी एरर आ जाएगा। अब सिंटैक्स, ये तो सिंटैक्स एरर हो गया। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन एनी लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई लैंग्वेज लिखने के लिए इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आप देखिए एग्जाम्पल क्या है कि फॉर, FOR, फॉर की बजाय FORR अगर आप लिख देंगे तो आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। लॉजिकल एरर्स, अ टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर, उसकी लॉजिक जो है वो गलत है। अ स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर मेड प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट्स इन प्रोग्राम्स, डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट, इट कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थारोली। अब देखें, आप सिर्फ एक सूरत में एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप एरर को थारोली जो है वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे हो सकता है? अब देखिए, अगर मैं कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रही हूँ और मैंने क्वेश्चन के दौरान प्लस की जगह माइनस लिख दिया तो मेरा आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यूजिंग रॉन्ग कंडीशंस इन प्रोग्राम सच एज राइटिंग A less than 5 instead of A greater than 5, using wrong formulas as writing average is equals to total multiplied by 5 instead of average total divided by 5. टाइप्स ऑफ एरर्स। नेक्स्ट कौन सी टाइप है एरर की? रन टाइम एरर। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट्स एन इलीगल ऑपरेशन। वो ऑपरेशन जो परफॉर्म ही नहीं होता वो अगर हम परफॉर्म कर देंगे तो रन टाइम एरर होगा। दीज आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, नॉर्मली अकर्स ड्यू टू रॉन्ग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। रॉन्ग इनपुट जो है यूज़र जब देगा तो इस वजह से रन टाइम एरर होगा। Computer stops executing the program and display error message if a runtime error occurs. एग्जाम्पल क्या है? डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं, यूज़र में एंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा, अगर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा एंटर कर देता है, यूज़र में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप जो है वो प्रोग्राम से ऐसी चीज़ डिमांड करते हैं, ठीक है, जो कि फ़ाइल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर, कौन सा एरर है जिसको फाइंड आउट करना सबसे मुश्किल होता है? लॉजिकल एरर, क्योंकि आप इसको थारोली जो है वो स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई एरर मौजूद है। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय कंपाइलर, जो लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं करता। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि जिस सबसे मुश्किल जो है वो फाइंड आउट करना जो है वो कौन सा वाला एरर है जिसको मुश्किल से आप जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इट डज़ नॉट क्रैश द प्रोग्राम को क्रैश भी नहीं करता। द यूज़र नीड्स टू रिव्यू द होल प्रोग्राम टू फाइंड आउट लॉजिकल एरर्स। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिटेक्टिंग लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर फाइंड आउट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है आपका। अब देखिए प्रोग्रामिंग अप्रोच। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल और फंक्शन, ठीक है। प्रोग्राम रिटन दीज लैंग्वेजेस आर
और एरर फ्री होते हैं, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एंड डिबग करना भी इसको मुश्किल होता है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब उनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, तो इसको जो है वो आपकी एक सिंगल मॉड्यूल होता है, इसको आपको जो है वो डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है, एरर फाइंड आउट करना भी मुश्किल होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स और फंक्शंस। अब देखें अनस्ट्रक्चर के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, एक ही मॉड्यूल के अंदर सारा प्रोग्राम था, जबकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर। फंक्शंस आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ईच मॉड्यूल इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट इम्प्लीमेंट्स अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। मेन मॉड्यूल कॉल्स अदर मॉड्यूल्स व्हेन दे आर नीडेड टू एग्जीक्यूट। It is a modular method of writing programs. It is an easy and simple technique to write programs. Programs written in these languages are easy to understand, modify and debug. There is a less possibility of errors in program. अब पिछले वाले में error जो है वो ज़्यादा पाए जाते थे, उसको एरर को फाइंड आउट करना मुश्किल होता था, जबकि इसके अंदर आपका जो है वो आपके एरर जो है वो बहुत कम से कम चांसेस होंगे एरर के आने के, और एरर को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। उसके अंदर मुश्किल था और इसके अंदर एरर को फाइंड आउट करना ईजी है बिल्कुल। डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो C++। सिंगल स्टेपिंग डिबगर जो है आपके पास, आप देखें डिबगिंग जो है कहते प्रोवाइड द फैसिलिटी टू फाइंड एरर्स बाय एग्जीक्यूटिंग वन लाइन ऑफ प्रोग्राम एट वन टाइम। एक वक्त में एक ही लाइन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, एरर फाइंड आउट करेगा। एनेबल्स द प्रोग्रामर्स टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ एरर्स और procedures to execute one step at a time with single stepping। select run और ट्रेसिंग 2 पे जाएंगे, यहाँ पे प्रेस F7 प्रेस करेंगे तो सिंगल स्टेपिंग जो है वो एरर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉचेस क्या है, यूज टू चेक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, इंडिकेट्स हाउ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, नॉर्मली यूज विद सिंगल स्टेपिंग। Place the cursor on the variable whose values is to be checked। Select क्या होगा, आप कैसे आप watches में जाके देख सकते हैं debug watches। उसके बाद add watch पे क्लिक करेंगे, फिर selected a variable will appear in watch expressions, फिर OK पे क्लिक करेंगे, press enter पे क्लिक करेंगे, a new window will appear indicating that the selected symbol is undefined। run tracing 2 पे क्लिक करेंगे, press F7 प्रेस करेंगे to execute single stepping। the value of the selected variables will appear in watch window के अंदर आपको जो है वो शो हो जाएगा। break points क्या है, used to mark a part of programming where programming execution will stops। program execute all statements up to the break point and then stops। user can check the value of variable at this point by using watch window by single stepping the remaining part of the program। place the cursor on the line on which the break points is to be inserted। select debug, उसके बाद टोगल ब्रेक पॉइंट्स हैं और प्रेस कंट्रोल प्लस F8 को प्रेस करेंगे। द ब्रेक पॉइंट विल बी इंसर्टेड एंड द लाइन विल बी हाईलाइटेड। जब आप ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करेंगे तो वो लाइन क्या होगी, हाईलाइट हो जाएगी। evaluate modify window, used to change the value of variable during program execution। it can be useful the user is single stepping the program and wants to change value of certain variables। आप क्या करना चाहते हैं, वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, डिबग पे जाएंगे, वैल्यूएटर मॉडिफाई पे जाएंगे, अ न्यू विंडो विल अपीयर विद दी 3 फील्ड्स साथ अपीयर हो जाएगी। एंटर द नेम ऑफ द वेरिएबल हुज वैल्यूज इज टू बी मॉडिफाई इन एक्सप्रेशन फील्ड्स। एंटर द न्यू वैल्यू फॉर द वेरिएबल इन न्यू वैल्यू फील्ड। द वैल्यू ऑफ द थर्ड फील्ड रिजल्ट विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास चेंज हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये चैप्टर जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो ये सारे लेक्चर सुनने के बाद, तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट में आएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।